we were discussing the fields of moving point charge in arbitrary motion, and in this regard you have seen two lectures on this subject. Now this is actually the third part of the lecture on the fields of moving point charge in arbitrary motion, and this is the final lecture. Today you will see the final result for the electric and magnetic field produced by a point charge which is in arbitrary motion. And as I have told you, when you say arbitrary motion of a point charge, that means the motion is not restricted that it is uniform. The motion may be uniform or it may be non-uniform, that is time dependent. It means we will consider that the velocity of the point charge is time dependent, that is accelerated motion you can say. And in this case, as I have told you earlier, that the fields produced by the moving point charge will have actually two parts. First part will depend on velocity and the second part will depend on acceleration of the charge. And that acceleration dependent field is actually known as radiation field, and that is responsible for the power radiation due to an accelerated charge. So this is a very important part of the lecture on the fields of moving point charge in arbitrary motion. Although you have seen that the mathematical calculation is somewhat is complicated to some extent, but when you will watch the lecture seriously, you will understand each and every step. It is my deep faith. So let us start with the results which we have obtained in the previous lecture. As I have told you that these results are not very convenient. This is not a standard result. So it means definitely you cannot remember this result. But if you will watch the video in continuation of the first and second part of the lecture, then you can recognize these results. तो आप देखिए, हमने जो पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, एक्चुअली उसी के कंटिन्यूएशन में आपको यह देखना होगा। यह कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, तो आप पिछले वाले वीडियो को देखिए और उसमें देखिए कि ये रिजल्ट हम लोगों ने फाइंड आउट किया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है पॉइंट चार्ज जो आर्बिट्रेरी मोशन में उसके द्वारा, उसके लिए जो एक्सप्रेशन है E ऑफ RT, that is simply equal to Q over 4 pi epsilon naught times n hat by k square r square plus n hat by ck d dt prime 1 over kr minus beta divided by k square r square minus 1 over ck d dt prime beta over kr. And similarly, the result for the magnetic field B of RT you have obtained in the previous lecture like this. This is mu naught QC over 4 pi times minus n hat cross beta over k square by k square r square minus n hat over ck d dt prime beta over kr. अब इस रिजल्ट में जो डिफरेंट क्वांटिटीज है सबसे आप वाकिफ़ हैं। इस दो रिजल्ट के अलावा प्रीवियस लेक्चर का कुछ और भी रिजल्ट यूज होगा जो हम यहाँ रिपीट नहीं कर रहे हैं। वो आपको जब बोलेंगे तो आपको याद आएगा जो आपने पहले के लेक्चर में पढ़ा है। अब इनफैक्ट आप इस दोनों ही एक्सप्रेशन में देखिए तो ये जो टाइम डेरिवेटिव है d dt प्राइम 1 ओवर के आर एंड d dt प्राइम बीटा ओवर के आर, इनफैक्ट ये दोनों ही एक्सप्रेशन में मौजूद है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के एक्सप्रेशन में। इनफैक्ट अब जब हम लोग इस रिजल्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा प्राइम एम है इसी टाइम डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना, और तब एक कन्वीनियंट फॉर्म में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का फाइनल एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे,
इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर जब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिजल्ट आ जाएगा तो आप इजीली मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या फाइनल एक्सप्रेशन होगा उसको बता सकते हैं बाय द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इसको बताया जा सकता है। तो देखिए आप ध्यान से देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। देखिए हमने फिर एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई के एक्सप्रेशन को जस्ट रिपीट कर दिया, जो वहाँ नोट किया था उसी बात को फिर यहाँ पर हमने रिपीट कर दिया है। इसमें आप देखिए कि कोई डिफरेंस नहीं है। अब इस रिजल्ट को हमने अभी बोला था आपसे कि हमारा प्राइम एम है सिंप्लीफाई करना इस मैनर से कि ये जो टाइम डेरिवेटिव है डी डी टी प्राइम 1/kr एंड डी डी टी प्राइम β/kr, इसको सिंप्लीफाई करना। अब एक एक स्टेप को आप ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल बात समझ में आएगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से ये सारा पॉइंट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, दिस टर्म हैज बीन जस्ट रिपीटेड Q/4πε0 टाइम्स n hat over k² प्लस n hat बाय ck। यहाँ तक तो ज्यों का त्यों लिख दिया। अब देखो डी डी टी प्राइम 1/kr, ध्यान से देखिए 1/kr को t प्राइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन 1/kr आप जानते हैं कि डायरेक्टली यह तो kr का फंक्शन होगा, इसलिए 1/kr को पहले kr के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और तब kr को फिर t प्राइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, जैसे देखिए 1/x का dc x के रेस्पेक्ट में क्या होता है -1/x²। ठीक उसी तरह से 1/kr का dc kr के रेस्पेक्ट में क्या होगा तो -1/k² -1/k² और फिर kr को डिफ्रेंशिएट करेंगे t प्राइम के रेस्पेक्ट में, सो दिस विल बी डी डी टी प्राइम kr। ओके, अब -β/k² इसको तो आपने ज्यों का त्यों लिख दिया है, इसमें कोई फर्क नहीं है। और फिर देखिए फिर है -1/ck डी डी टी प्राइम β/kr। अब इसको इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएशन करना है β/kr का। तो आप इसको ऐसे समझिए कि दिस इज जस्ट ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। बोलो किसका किसका? तो पहला फंक्शन अगर बीटा है तो दूसरा फंक्शन है 1/kr, नॉट kr, 1/kr। तो u इंटू भी का रूल फॉलो करेंगे। बीटा को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/kr को ज्यों का त्यों रखना है। तो 1/kr को अगर ज्यों का त्यों रख लिया तो ck में kr से मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा ck² r, और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा? बीटा का। सो दिस इज -1/ck² r d β/dt प्राइम। देख रहे हैं यहाँ पर। अब बीटा फैक्टर को ज्यों का त्यों रखेंगे, 1/kr को डिफ्रेंशिएट करेंगे दूसरे फंक्शन को। चूंकि शुरू में ही यहाँ पर माइनस है इसीलिए यहाँ पर माइनस ही होगा प्लस के बदले। सो दिस विल बी β/ck और 1/kr को फिर t प्राइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले यह kr के रेस्पेक्ट में होगा तो होगा -1/k² एंड फिर kr को t प्राइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दिस विल बी d dt प्राइम kr। ओके, अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग कुछ जो टर्म है उसको एसोसिएट करके हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं। ध्यान से देखिए, जो पहला टर्म है जहाँ हमने ये डॉट बनाया है इसको देखिए, और ये दूसरा टर्म जिसके नीचे फिर डॉट बनाया है
इस दोनों में 1/k² कॉमन फैक्टर है, तो आप 1/k² को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, n hat minus beta. So I have written here n hat minus beta over k²r². ओके, और फिर आप देखिए, अब जो ये टर्म है, ये जहाँ हमने ये क्रॉस बनाया है नीचे में, इस क्रॉस को देखिए और फिर इस क्रॉस वाले टर्म को देखिए। आप इस दोनों को भी एसोसिएट कर ले सकते हैं एक साथ। इनफैक्ट इस दोनों ही टर्म को अगर हम ध्यान से देखें तो इस दोनों टर्म में -1/k² d/dt प्राइम kr कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर है। ओके, और साथ ही साथ अगर आप देखें इस दोनों टर्म में, तो यहाँ पहले से आपका एक ck है, ck दोनों जगह मौजूद है, तो ck को मल्टीप्लाई करेंगे k²r² से, देन यू विल गेट k³ r²c। ओके, d/dt प्राइम kr, ये तो कॉमन हो गया, बच जाएगा पहला टर्म में, जरा देखिए बचेगा -n hat, लेकिन हमने यहाँ ले लिया माइनस, इसलिए लिखेंगे +n hat। ओके, और दूसरा टर्म में यह माइनस और यह माइनस दोनों प्लस है, अब माइनस कॉमन लिया इसलिए माइनस बीटा हो जाएगा। सो these two terms when will be combined, then you will get -n hat minus beta over k³r²c times d/dt प्राइम kr। ओके, एंड अब ये जो टर्म बच रहा है, आप देखिए -1/ck² d/β/dt प्राइम। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन अगर हम बीटा का करेंगे तो हम इसे डॉट सिंबल में लिख सकते हैं, दिस d/β/dt प्राइम कैन बी रिटन एज बीटा डॉट। तो आप देखिए हमने यहाँ पर डॉट बनाया है, दिस इज बीटा डॉट। ओके, सो दिस विल बी -बीटा डॉट ओवर ck²r। तो ये सिंप्लीफाई होकर के इस रूप में आपको मिला। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। आप अगेन देखिए कि इन द फर्स्ट टर्म एंड इन द सेकेंड टर्म n माइनस बीटा, n मीन्स n hat माइनस बीटा ओवर k²r² कॉमन है कि नहीं, उसको कॉमन लेके लिख सकते हैं, लेकिन हमने कॉमन लिया n hat माइनस बीटा डिवाइडेड बाय k³r²। कॉमन फैक्टर में नीचे में k²r² है, लेकिन आपने k³ ले लिया, तो फर्स्ट टर्म में k से मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए यहाँ पर बच जाएगा k, और सेकेंड टर्म में तो ऑलरेडी k³ है, इसलिए यहाँ पर k नहीं बचेगा। यहाँ क्या बच रहा है, केवल 1/c d/dt प्राइम ऑपरेटेड ऑन kr। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म को कंबाइन करके आपने ये लिखा, एंड जो लास्ट टर्म है बीटा डॉट ओवर ck²r, आप देखिए दैट हैज बीन रिटन इन द सेम मैनर, वह बिल्कुल पहले ही जैसा, दिस इज बीटा डॉट, ध्यान रखना, जो कि टाइम डेरिवेटिव है बीटा का, और बीटा का रिलेशन है वेलोसिटी से, यही एक्सीलरेशन टर्म है। जब तुम कहते हो बीटा डॉट, तो बीटा डॉट का मतलब है v डॉट बाय सी, अब v डॉट मतलब dv/dt प्राइम जो एक्सीलरेशन है। एक्चुअली दिस टर्म इज द एक्सीलरेशन टर्म, यही एक्सीलरेटेड मोशन को बताता है। अब e ऑफ rt इस रूप में सिंप्लीफाई हो गया, लेकिन अभी भी ये जो टाइम डेरिवेटिव है d/dt प्राइम kr, वो तो अभी भी प्रेजेंट है हमारे इक्वेशन में, लेकिन हमारा एम तो है फाइनली इस डेरिवेटिव को इवेलुएट करना। इसलिए अब क्या करेंगे,
जो सेकंड टर्म जिसमें मौजूद है डी डी टी प्राइम के आर, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे जिससे कि डेरिवेटिव का हम एग्जैक्ट मान निकाल पावे। इज इट ओके? नाउ यू कैन सी what will be the value of this 1 over c d dt prime kr, ठीक है, 1 over c d dt prime kr, इसको हम लोग अब इवेलुएट करने जा रहे हैं। आप फिर देख सकते हैं कि यहाँ जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट आप करने जा रहे हैं वह फंक्शन एक्चुअली दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, एक है k, दूसरा है r। तो अगेन u और u इंटू v का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो, अगर r को नहीं डिफरेंशिएट क्या रख लिया तो k का डिफरेंशिएशन होगा, सो दिस विल बी r बाय c डी के बाय डी टी प्राइम प्लस, नाउ वी विल डिफरेंशिएट इन फैक्ट r, सो दिस विल बी k बाय c डी आर बाय डी टी प्राइम। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखिए, आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, हम यहाँ बोले थे अभी कि जो आपको पिछले क्लास के कुछ रिजल्ट का यूज होगा तो आपको याद आना चाहिए। k बराबर होता है 1 माइनस एन हैट बीटा डॉट, याद आ रहा है, आपने पिछले क्लास में पढ़ा है। सो दिस फर्स्ट टर्म कैन बी रिटन एज r बाय c डी डी टी प्राइम 1 माइनस एन हैट डॉट बीटा, और अगेन सेकेंड टर्म में भी k है तो k के जगह पर लिख दिया 1 माइनस एन हैट डॉट बीटा टाइम्स 1 ओवर c, और फिर याद करो डी आर बाई डी टी, आर यहाँ वेक्टर आर का मॉडुलस है और इसका भी वैल्यू हमने पिछले क्लास में निकाला था कि दिस इज माइनस एन हैट डॉट भी। डेफिनेटली आपको याद आना चाहिए, ये सब आप पढ़ चुके हैं, इसलिए इस बात को हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। अब देखिए, अब फर्स्ट टर्म पर फिर ध्यान दो, डी डी टी प्राइम ऑपरेटर ऑपरेटेड होगा 1 पर भी और माइनस एन हैट डॉट बीटा पर भी, ठीक है। 1 तो एक कांस्टेंट है, नंबर है, अगर डी डी टी प्राइम को 1 पर ऑपरेट कराएंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा ना, कांस्टेंट का डी सी 0 होता है, तो हमने लिखा भी नहीं उसको, ठीक है। अब इस डी डी टी प्राइम को माइनस एन हैट डॉट बीटा पर ऑपरेट कराना है। फिर दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ गया, एक है एन हैट, दूसरा है बीटा, तो फिर यू इंटू भी का रूल फॉलो करो, लेकिन शुरू में ही माइनस है, देखो, इसलिए दोनों टर्म माइनस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, माइनस एन हैट डॉट डी बीटा बाई डी टी प्राइम एंड माइनस बीटा डॉट डी एन हैट बाय डी टी प्राइम। बिल्कुल सिंपल, ये तो बिल्कुल बच्चे वाला कैलकुलेशन है। एंड प्लस, अब ये जो हमारा सेकेंड टर्म है, इस सेकेंड टर्म को आप देखिए कि दिस इज इनफैक्ट 1 माइनस एन हैट डॉट बीटा टाइम्स माइनस एन हैट डॉट बीटा, और इनफैक्ट इस केस में आप देख सकते हैं कि जो यहाँ जो फैक्टर था 1 ओवर c, तो ये 1 ओवर c को होल से ही कॉमन ले लिया गया, ठीक है, होल से कॉमन ले लिया, तो ये रिजल्ट हो गया। अब देखिए, अब हम लोग इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर r बाय c एंड डी बीटा बाय डी टी प्राइम, डी बीटा बाय डी टी प्राइम, तो जब डी बीटा बाय डी टी प्राइम लेंगे तो इसको फिर लिख दिया बीटा डॉट, तो आप देखिए यहाँ लिख दिया बीटा डॉट, सो दिस इज माइनस एन हैट डॉट बीटा डॉट माइनस बीटा डॉट डी एन हैट बाय डी टी, और याद करो कि डी एन हैट बाय डी टी प्राइम का भी वैल्यू निकाला हुआ था पहले के क्लास में, एन हैट क्रॉस बीटा डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। अब यहाँ इस माइनस एन हैट डॉट बीटा से हम लोग क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एन हैट डॉट बीटा को, तो 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एन हैट डॉट बीटा,
और माइनस एन हैट डॉट बीटा में माइनस एन हैट डॉट बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी प्लस एन हैट डॉट बीटा स्क्वायर। ओके, अब देखिए, अब इस सी फैक्टर से 1/c से भीतर के टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो फर्स्ट टर्म में हो जाएगा माइनस एन हैट डॉट बीटा डिवाइडेड बाय सी। सेकेंड टर्म में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर माइनस बीटा डॉट बीटा डॉट और इनफैक्ट एन हैट क्रॉस बीटा, दिस इज जस्ट ए ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। याद करो, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स है यह, और ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स अगर आप लेते हैं तो वैसी स्थिति में आप फॉर्मूला जानते हैं कि दिस विल बी एन हैट डॉट बीटा इंटू एन माइनस एन हैट डॉट एन हैट इंटू बीटा। याद है, लेकिन एन हैट डॉट एन हैट तो 1 हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर सीधा बीटा ही लिख दिया एंड डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, इनफैक्ट जब 1/c से इसमें मल्टीप्लाई होता है डी एन हैट बाय डी टी इतना नहीं होता है, बल्कि इसमें 1/c से मल्टीप्लाई होने के बाद होता है। ठीक है, इसीलिए आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो 1/c से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तब इसलिए c यहाँ नहीं लिखा गया। इनफैक्ट यह जो रिजल्ट है एन हैट क्रॉस बीटा डिवाइडेड बाय आर, ये होता किसके बराबर है? तो 1/c डी एन हैट बाय डी टी प्राइम, ये बराबर होता है एन हैट क्रॉस बीटा एंड डिवाइडेड बाय आर। इसलिए आप देखते हैं कि जो सेकंड टर्म में c 1/c से मल्टीप्लाइड नहीं है, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करने के बाद यह रिजल्ट आएगा, है ना। या आप इसको थोड़ा सा ये लिखने में ऐसा है कि हम ऐसा करते हैं कि जो इसको यहाँ एक ब्रैकेट डाल दें और फिर इनफैक्ट यहाँ पर ही सोचिए कि जो इसी जगह एक ब्रैकेट डाल दो और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर दें r/c से, लेकिन r को कॉमन ही रखेंगे। तो यहाँ पर ऐसा सोचिए कि जो इस फैक्टर में भी r/c से मल्टीप्लाइड है। ठीक है, r/c से। और अब सोचिए कि r/c केवल इसमें गुना है और जो r वाला टर्म है, r वाला टर्म, उसको अगर कॉमन ले लें तो r यहाँ रहेगा और इसमें सोचिए कि c को रहने दिया, सेकेंड टर्म में c रहने दिया, तो 1/c इंटू डी एन हैट बाई डी टी प्राइम, उसके जगह पर आपने इतना लिख दिया। थोड़ा सा लिखने में यहाँ ये हुआ। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जो लास्ट टर्म 2 टर्म है उसको देखिए, दिस इज माइनस एन हैट डॉट बीटा प्लस एन हैट डॉट बीटा होल स्क्वायर। तो 1/c डी डी टी प्राइम के आर का वैल्यू आपने अभी ये फाइंड आउट किया है। ठीक है, अब इस रिजल्ट को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे। इसको आप ध्यान से देखिए कि 1/c डी डी टी प्राइम के आर जो टर्म है आपने जो फाइंड आउट किया है फर्स्ट टर्म में, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में क्या है, माइनस r/c एन हैट डॉट बीटा डॉट। तो इसी को यहाँ पर लिखा गया माइनस एन हैट डॉट बीटा डॉट इंटू r/c। ठीक है, और जो सेकेंड टर्म है आपका, सेकेंड टर्म ध्यान से देखिए, सेकेंड टर्म में बीटा डॉट दिस मच, तो बीटा डॉट दिस मच करिएगा
तो ये एन हैट डॉट बीटा इंटू एन हैट डॉट बीटा हो जाएगा, नहीं, एंड माइनस बीटा डॉट बीटा, इस बीटा डॉट से इस बीटा डॉट का प्रोडक्ट लो, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर सिंप्लीफाई करके हमने लिखा है, आप देख सकते हैं। दिस इज एन हैट डॉट बीटा इंटू एन हैट डॉट बीटा अब प्लस बीटा डॉट बीटा, और लास्ट वाला जो दोनों टर्म है माइनस एन हैट डॉट बीटा प्लस एन हैट डॉट बीटा स्क्वायर, इसे तो ज्यों का त्यों लिख दिया गया। ओके, अब देखो बीटा डॉट बीटा, दिस इज बीटा स्क्वायर एंड दिस माइनस एन हैट डॉट बीटा लिख लिया, एंड फिर यहाँ देखिए माइनस एन हैट डॉट बीटा इंटू एन हैट डॉट बीटा, दिस विल बी माइनस एन हैट डॉट बीटा स्क्वायर, और लास्ट टर्म में ऑलरेडी पहले से है प्लस एन हैट डॉट बीटा स्क्वायर, और जो फर्स्ट टर्म है एन हैट डॉट बीटा डॉट टाइम्स आर बाय सी, उसको लास्ट में लिख लिया। नाउ दीज टू टर्म्स विल कैंसिल आउट, एक प्लस दूसरा माइनस है और सेम है। ओके, सो 1/c डी डी टी प्राइम के आर बोलो कितना के बराबर, बीटा स्क्वायर लिख लिया, माइनस एन हैट डॉट बीटा उसको भी लिखा, और लास्टली बच रहा है आर बाय सी एन हैट डॉट बीटा। अब ये जो आपने इस टर्म का वैल्यू निकाला 1/c डी डी टी प्राइम के आर का, अब यह वैल्यू हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो आपने एक्सप्रेशन अभी क्वेश्चन 1 में सिंप्लीफाई करके लाया था, जिसमें यह टर्म प्रेजेंट था 1/c डी डी टी प्राइम के आर, दैट इज टाइम डेरिवेटिव वाला, हमने कहा था इसी टाइम डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके उस इक्वेशन में अब रख देंगे। तो इक्वेशन 2 का यूज करना है अब किस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। आप फिर से एक बार इक्वेशन 1 को जरा देख लीजिए, दिस इज योर इक्वेशन 1, एन दिस इज इन फैक्ट q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन हैट माइनस बीटा बाय के क्यूब आर स्क्वायर टाइम्स के माइनस दिस मच, इसी टर्म का आपने वैल्यू निकाला है 1/c डी डी टी प्राइम के आर का, ठीक है। और के को हम लोग 1 माइनस एन हैट डॉट बीटा भी लिखते हैं, तो इस के जगह पर 1 माइनस एन हैट डॉट बीटा लिख देंगे। अब 1/c डी डी टी प्राइम के आर का जो वैल्यू निकाला, अब उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, और जो लास्ट टर्म है वह एटिज रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसका यूज इसमें करने जा रहे हैं, और यूज करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा आप उसको देख सकते हैं यहाँ पर। सो ई ऑफ आर टी नाउ विल बिकम q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन हैट माइनस बीटा ओवर के क्यूब आर स्क्वायर टाइम्स, यहाँ क्या था, यहाँ था के, और हमने कहा था कि के को रिप्लेस करो 1 माइनस एन हैट डॉट बीटा से, एंड माइनस फिर जो 1/c डी डी टी प्राइम वाला फैक्टर था, उस टर्म का वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट किया इस इक्वेशन 2 में, जो आप देख सकते हैं वह इतना के बराबर है, उसी का यूज कर दिया गया यहाँ पर। और लास्ट टर्म ज्यों का त्यों है, जो आप देख रहे हैं कि माइनस बीटा डॉट ओवर सी के स्क्वायर आर, इज इट ओके। हम उम्मीद करते हैं कि आपने समझा होगा इसको। सिर्फ यहाँ एक ही काम किया गया कि के को रिप्लेस करके 1 माइनस एन हैट डॉट बीटा और 1/c डी डी टी प्राइम के आर का वैल्यू जो ये हमने अंडरलाइन किया, इसके बराबर है, इसको यहाँ पर पुट कर दिया गया। ओके, अब फिर इसको हम लोग एक लिटिल बिट सिंप्लीफाई करेंगे, आप ध्यान से देखिए। तो ये जो एक्सप्रेशन है ई ऑफ आर टी का, दिस इज q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन हैट माइनस बीटा बाय के स्क्वायर आर स्क्वायर, और अब इसमें देखना है कि हमारा 2 टर्म होगा जिसमें यह इनफैक्ट कॉमन रूप में प्रेजेंट है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए एन हैट माइनस बीटा डिवाइडेड बाय के क्यूब आर स्क्वायर,
उससे तुम 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही रह जाएगा, और इसी फैक्टर से इस पूरे में मल्टीप्लाइड है। एन हैट माइनस बीटा डिवाइडेड बाय के क्यूब आर स्क्वायर से बीटा स्क्वायर में भी मल्टीप्लाइड है कि नहीं? तो एन हैट माइनस बीटा डिवाइडेड बाय के क्यूब आर स्क्वायर कॉमन रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर, 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी एन माइनस बीटा डिवाइडेड बाय के क्यूब आर स्क्वायर से देखो कि माइनस एन हैट डॉट बीटा, यहाँ पर यह माइनस है, और अगर यहाँ मतलब ऐसे ही सोचिए, अगर यहाँ पर हम ब्रैकेट हटा दें तो क्या बचेगा? ध्यान से देखो, इस ब्रैकेट को हटाने पर बचेगा 1 माइनस एन हैट डॉट बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अब प्लस एन हैट डॉट बीटा एंड प्लस आर बाय सी एन हैट डॉट बीटा डॉट। बात सुना रही है? अब ये एन हैट डॉट बीटा यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, कैंसिल हो गया। तो एन हैट माइनस बीटा बाय के क्यूब आर स्क्वायर आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे किसको? 1 माइनस बीटा स्क्वायर को, साथ ही साथ इससे मल्टीप्लाई करेंगे किसको? तो आर बाय सी इंटू एन हैट डॉट बीटा डॉट को। वही चीज वहां किया हुआ है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। यही काम यहां पर किया हुआ है। 1 माइनस बीटा स्क्वायर वाला टर्म आ गया, और एन हैट माइनस बीटा बाय के क्यूब आर स्क्वायर आर बाय सी एन हैट डॉट बीटा डॉट, ओके। अब जो लास्ट टर्म आपका है वह ज्यों का त्यों लिखा हुआ है। अब जरा आप गौर करिए, फर्स्ट टर्म को जस्ट रिपीट कर दिया, एन हैट माइनस बीटा इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर बाय के क्यूब आर स्क्वायर एंड प्लस। अब जो लास्ट दो टर्म है, इस लास्ट दो टर्म में 1 ओवर सी के क्यूब इंटू आर एक कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन ले लिया उसको। अब देखो कि इसको जब कॉमन ले लोगे तो फर्स्ट टर्म में क्या बच रहा है? ध्यान से देखिएगा कि यहाँ है आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल हो करके आपको नीचे बच जाएगा के क्यूब आर सी, तो के क्यूब आर सी को ही कॉमन लिया गया, ओके। अब फर्स्ट टर्म को आप जरा ध्यान से देखिए, इसमें है एन हैट डॉट बीटा डॉट इंटू एन हैट माइनस बीटा, उसे लिख लिया। और लास्ट टर्म में आपका क्या बच रहा है? लास्ट टर्म में बच रहा है बीटा डॉट इंटू के, और के जगह पर आप लिख सकते हैं 1 माइनस एन हैट डॉट बीटा। अब बीटा डॉट जो का त्यों है, तो ये सिंप्लीफाई होकर के इस रूप में आ गया, ओके। फिर आप देखिए, फिर जो फर्स्ट टर्म है इस स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर उसे आपने ज्यों का त्यों लिखा, एन हैट माइनस बीटा इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर बाय के क्यूब आर स्क्वायर एंड प्लस 1 ओवर सी के क्यूब आर, इसको लिखा। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारा टर्म है एन हैट डॉट बीटा डॉट इंटू एन हैट माइनस बीटा अब माइनस 1 माइनस एन हैट डॉट बीटा इंटू बीटा डॉट, इतने को हम क्या लिख सकते हैं? पहले आप यहाँ पर देखिए, हमने उसको सिंप्लीफाई किया है। दिस इज जस्ट ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर का ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट है यह वेक्टर प्रोडक्ट। कौन कौन वेक्टर है? तो पहला वेक्टर है एन हैट, दूसरा वेक्टर है एन हैट माइनस बीटा, और तीसरा वेक्टर है बीटा डॉट। बीटा डॉट, यहाँ डॉट है, ध्यान से देखो। तो ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट के डेफिनेशन से आप इसको क्या लिख सकते हैं, जरा गौर करके देखिए। इसको लिखेंगे एन हैट डॉट बीटा डॉट इनटू एन हैट माइनस बीटा
एंड माइनस फिर लिखेंगे एन हैट डॉट एन हैट माइनस बीटा इंटू बीटा डॉट, होता कि नहीं। जैसे आप लिखते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो उसको क्या लिखते हैं ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। तो ठीक उसी फॉर्मूला से ऐसा लिख रहे हैं। अब देखो, अब ये जो फर्स्ट टर्म है इसको तो रिपीट ही हमने कर दिया फिर, लेकिन यहाँ आप जरा गौर करिए कि एन हैट डॉट एन हैट माइनस बीटा, तो एन हैट से डॉट प्रोडक्ट लो एन माइनस बीटा का, तो एन हैट डॉट एन हैट दैट विल बी वन, वन लिख दिया। एन हैट डॉट बीटा उसको लिखा यहाँ पर, और सब में मल्टीप्लाई है बीटा डॉट से। तो यही चीज़ आप देखिए, वही चीज़ यहाँ लिखा गया कि ये जो टर्म था एन हैट डॉट बीटा डॉट इंटू एन हैट माइनस बीटा, अब माइनस वन माइनस एन हैट डॉट बीटा इंटू बीटा डॉट, इतने के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए दिस कैन बी रिटन एज एन क्रॉस एन हैट माइनस बीटा क्रॉस बीटा डॉट, इसलिए इसको यह लिख दिया यहाँ पर, आप देख सकते हैं। बात समझ में आ गई। वेक्टर के ट्रिपल प्रोडक्ट से जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तब आपका यह रिजल्ट आ जाता है एन हैट क्रॉस एन हैट माइनस बीटा क्रॉस बीटा डॉट। ओके, चलिए अब फिर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देखिए। यहाँ पर एक सिंपल सा अलजेब्रा यूज किया, सब कुछ वही है। फर्स्ट टर्म में आप ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट टर्म था एन हैट माइनस बीटा इंटू वन माइनस बीटा स्क्वायर बाय के क्यूब आर स्क्वायर, ऐसा था। आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ हो जाएगा आर एन हैट माइनस आर बीटा इंटू वन माइनस बीटा स्क्वायर, और नीचे भी आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस विल बी के क्यूब इंटू आर क्यूब। अब सेकेंड टर्म में एक्चुअली हम आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड टर्म में एक्चुअली यहाँ पर केवल आर था, तुम देख सकते हो कि सेकेंड टर्म में केवल क्या था, सेकेंड टर्म में केवल आर है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अब आर स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो नीचे भी आर क्यूब हो जाएगा, और ऊपर देखो कि आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो जाएगा, आप इस बात को देख सकते हैं। देखिए यहाँ क्या क्या, यहाँ था एन हैट क्रॉस एन हैट माइनस बीटा क्रॉस बीटा डॉट, ऐसा था कि नहीं। लेकिन देखो हमने आर ले लिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें भी आर से, तो इसका मतलब आर स्क्वायर से आपने मल्टीप्लाई किया। एक आर यहाँ लिखा हुआ है आर एन हैट में, अब फिर दूसरा ये जो एन हैट माइनस बीटा था इसमें भी आर से मल्टीप्लाई करिए, इसका मतलब ऊपर में आप आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, लेकिन आप जानते हैं कि जो वेक्टर आर होता है उसी के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है एन हैट। इसका मतलब एन हैट इंटू आर, ये तो वेक्टर आर के बराबर है, और साथ ही साथ के इंटू आर, के को आप लिखते हैं वन माइनस एन हैट डॉट बीटा इंटू आर, आर से मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो दिस विल बी आर माइनस आर एन डॉट बीटा। लेकिन आर एन डॉट बीटा, आर एन को हम लोग फिर वेक्टर आर लिख देंगे, तो देयरफॉर दिस इज आर माइनस आर हैट आर डॉट बीटा। अब ये सब्स्टिट्यूशन ऊपर वाले इक्वेशन में कर दीजिए, मतलब हुआ कि जहाँ आर एन हैट है उसको वेक्टर आर लिख देंगे, और जहाँ के आर है उसको आर माइनस आर डॉट बीटा लिख लेंगे। ओके, सो finally you will get the expression for electric field like this: E of RT equal to Q over 4 pi epsilon naught into, ध्यान से देखो, अब जो फर्स्ट टर्म है उसमें आर एन हैट, लेकिन आर एन हैट को वेक्टर आर लिख लेंगे, टाइम्स माइनस आर बीटा, तो माइनस आर बीटा लिख दिया, इंटू वन माइनस बीटा स्क्वायर लिख ही दिया, के क्यूब आर क्यूब, आप जान चुके हैं कि के आर बराबर है आर माइनस आर डॉट बीटा के, तो जब हम के आर पर 3 पावर देंगे तो इसको लिखेंगे आर माइनस आर डॉट बीटा टू दी पावर 3। ओके,
फिर आप सेकेंड टर्म को देखिए जो ब्रैकेट के भीतर है, इस पर जरा आप गौर करिए। आर एन, फिर उसको लिख दिया आर क्रॉस आर एन माइनस आर बीटा, आर एन को आगे लिख दिया आर बीटा ज्यों का त्यों है, क्रॉस बीटा डॉट वह भी ज्यों का त्यों है, और नीचे देखो सी है, अब फिर है के क्यूब आर क्यूब, बट के आर इज इक्वल टू आर माइनस आर डॉट बीटा, तो हम इसको लिख देंगे सी आर माइनस आर डॉट बीटा का होल क्यूब, एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। गौर करिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का आगे हम यह डिस्कस भी किए हैं कि जो दो पार्ट है, जो पहला टर्म है आपका इस स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर, उसमें आप ध्यान दीजिए तो बीटा आता है, और बीटा का संबंध आप जानते हैं कि वेलोसिटी से है, बिकॉज बीटा इज v बाय सी। सो फर्स्ट टर्म एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड या वेलोसिटी डिपेंडेंट पार्ट। लेकिन अगर आप सेकेंड टर्म को देखें जो इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट है, तो उसमें टर्म आता है बीटा डॉट। देखो यहाँ पर दिस इज बीटा डॉट, और आपको बताया था कि जब तुम बीटा डॉट बोलोगे तो इसका मतलब तो भी डॉट बाय सी होगा। अब भी डॉट मतलब डी वी बाई डी टी, या डी वी बाई डी टी का मतलब एक्सीलरेशन, इसका मतलब ये एक्सीलरेशन वाला पार्ट है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअली दो पार्ट हो गया, एक वेलोसिटी डिपेंडेंट पार्ट जिसको नॉन रेडिएटिव फील्ड कहते हैं, उस फील्ड के कारण कोई रेडिएशन नहीं होता है, और दूसरा जो एक्सीलरेशन डिपेंडेंट पार्ट है दैट इज कॉल्ड रेडिएटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअली उसी से एनर्जी इमिटेड होता है, और दैट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम द मूविंग पॉइंट चार्ज। मूविंग पॉइंट चार्ज से जो रेडिएशन निकलता है उसके लिए वही इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है जिसमें एक्सीलरेशन वाला टर्म मौजूद है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन तो आपने निकाल लिया, अब हम बड़ी आसानी से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा जो प्रोड्यूस्ड होगा इस मूविंग पॉइंट चार्ज के कारण जो आर्बिट्रेरी मोशन में है, इसको निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ पीछे के बातों को थोड़ा सा याद रखना होगा। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, दीज टू फील्ड्स आर रिलेटेड बाय दिस रिलेशन, बी इक्वल टू एन हैट क्रॉस ई डिवाइडेड बाय सी होता है। ऐसा आपने लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल में जब पढ़ाया था शुरुआत में तब भी बताया था, या आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ते हैं शुरू में तब भी ये रिलेशन आता है कि बी इस केस में क्या होगा, एन हैट क्रॉस ई डिवाइडेड बाय सी। तो इस रिजल्ट को याद रखिए, दिस इज रिलेशन बिटवीन बी एंड ई इन दिस केस। अब ऐसी स्थिति में अगर आप ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दें, आरएचएस में गौर से देखो, आर से मल्टीप्लाई करना है, तो आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर एन को लिख देंगे वेक्टर आर, और नीचे आर लिख दिया। सो एन हैट क्रॉस ई बाय सी कैन बी रिटेन एज आर क्रॉस ई डिवाइडेड बाय आर सी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो आर डिवाइडेड बाय आर सी क्रॉस ई ही तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ऑलरेडी जान चुके हैं। तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन जानना है तो आप क्या करिएगा, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर सी का क्रॉस प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है उसके साथ ले लेंगे, और हमको मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन मालूम हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो स्केलर पार्ट है, इसको कोई मतलब नहीं है, उस क्रॉस प्रोडक्ट से इसको बाहर रख लिया। 1 बाय आर सी आता है तो 1 बाय आर सी भी लिख लिया। अब करना क्या है, आर वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के एक्सप्रेशन का। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के एक्सप्रेशन का ही Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले लिख लिया। अब रिमेनिंग टर्म अभी आप तुरंत एक्सप्रेशन देखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है आर माइनस आर बीटा इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस आर डॉट बीटा का होल क्यूब, होता है कि नहीं। तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया आर के साथ। फिर जो सेकंड टर्म होता है
उस सेकेंड टर्म में आप देखे थे कि वह आता है आर क्रॉस आर माइनस आर बीटा क्रॉस बीटा डॉट। ये मॉडुलस का साइन नहीं है, ये एक ब्रैकेट ही, इसको समझिए कि ये ब्रैकेट के भीतर लिखा गया है, और डिवाइडेड बाय सी इंटू आर माइनस आर बीटा का होल क्यूब ये था। अब उसमें उसका क्या करना है, आर क्रॉस के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। तो यहाँ भी हो गया आर क्रॉस और जो दिस मच जो एक्सप्रेशन में था। बात समझ में आई? मतलब आर बाय आर सी से क्रॉस प्रोडक्ट जस्ट ई का ले लो और ई का एक्सप्रेशन तुम जान चुके हो। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ध्यान से देखिए। Q ओवर 4πε0 आर सी ज्यों का त्यों। अब इस R से वेक्टर R से क्रॉस प्रोडक्ट लेना है R माइनस आर बीटा का। ध्यान से देखिए, R क्रॉस R क्या होगा, 0। किसी भी वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट स्वयं के साथ लोगे तो हमेशा 0 होता है, क्योंकि इस दोनों के बीच एंगल 0 होगा। और क्रॉस प्रोडक्ट के डेफिनेशन में आता है ए बी साइन थीटा, थीटा 0 तो 0, इसलिए आर क्रॉस आर इज 0। तो फर्स्ट टर्म 0 हो गया। सेकंड क्या बचेगा, आर माइनस आर क्रॉस आर बीटा माइनस आर इंटू आर क्रॉस बीटा। तो देखो माइनस आ गया, आर इंटू आर क्रॉस बीटा लिख दिया। अब बाकी जो का त्यों 1 माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस आर बीटा आर डॉट बीटा होल क्यूब। और जो सेकंड लास्ट टर्म है इस ब्रैकेट के भीतर, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, उसे ज्यों का त्यों लिख दिया गया है। आप यहां देख सकते हैं, है ना। अब देखिए, इसी को अब अरेंज करके लिख दिया। आप कई बार पिछले क्लासेज में देखे हैं कि ये जो Q बाय 4πε0 इंटू सी आता है, यह वास्तव में बराबर होता है म्यू नॉट क्यू सी डिवाइडेड बाय 4π के। होता है कि नहीं? ये आप कई बार ऐसा चेंज कर चुके हैं, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इज म्यू नॉट क्यू सी डिवाइडेड बाय 4π लिख दिया। आप वो भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यह लिखा जाए। अक्सर मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन में परमेबिलिटी टर्म में म्यू नॉट लिखते हैं, इसलिए लिख दिया, ठीक है। एंड अब आप जरा ध्यान से देखिए, आपके एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म में है माइनस आर इंटू आर क्रॉस बीटा। आप जानते हैं कि जो दो वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, वह बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, बल्कि वह होता है माइनस बी क्रॉस ए के बराबर, माइनस बी क्रॉस ए। तो माइनस आर क्रॉस बीटा को प्लस बीटा क्रॉस आर लिख सकते हैं। तो बस वही किया गया और कोई फर्क नहीं है, आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म को भी प्लस कर दिया और आर क्रॉस बीटा के जगह पर लिख दिया बीटा क्रॉस आर, ठीक है। अब 1 माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस मच। और एक बात और देख लीजिए कि जो यहाँ जो आर था, आर इंटू था ना आर क्रॉस बीटा, तो यह आर और ये जो बाहर वाला आर है उससे यह कैंसिल हो गया, इसीलिए वह आर नहीं लिखा गया है, ठीक है। और सेकंड टर्म में वही नीचे वाला आर आ गया, यहाँ पर आर सी आ गया। अब बाकी जो ऐसा का तैसा लिखा हुआ है। तो अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का हमें जो एक्सप्रेशन मिला, एक्चुअली इसका दो पार्ट है। यहाँ भी आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन में ये जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट में बीटा फैक्टर प्रेजेंट है, मतलब वेलोसिटी प्रेजेंट है। सो दिस इज नोन एज वेलोसिटी डिपेंडेंट फील्ड। और जो सेकंड टर्म है उसमें बीटा डॉट है, आप देख सकते हैं कि हियर बीटा डॉट इज प्रेजेंट, एंड बीटा डॉट मतलब हो गया एक्सीलरेशन टर्म। इसलिए हम लोग फर्स्ट टर्म को वेलोसिटी डिपेंडेंट फील्ड कहते हैं, तो दूसरे को एक्सीलरेशन डिपेंडेंट फील्ड कहते हैं। अगर हम मान लें कि वेलोसिटी डिपेंडेंट फील्ड है ई भी और एक्सीलरेशन डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई ए, तो आप वेक्टर ई को लिख सकते हैं ई भी प्लस ई ए। और वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में वेक्टर बी को लिख सकते हैं बी भी प्लस बी ए। अब आप बता सकते हैं कि ई भी क्या होगा, ई ए क्या होगा, बी भी क्या होगा, बी ए क्या होगा, ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं
निकाल सकते हैं, या तो यहाँ से देख करके लिख सकते हैं, या जो रिलेशन बताया उसके आधार पर। तो ध्यान से देखो, अगर तुम ईभी जानना चाहते हो तो पहले ही देखो कि ईभी को क्या लिखोगे, तुम समझ सकते हो। ईभी को यहाँ पर, ओह सॉरी, हम लोगों को तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पहले देखना ना। यहाँ देखिए, देखो Q डिवाइडेड बाय 4πε0 टाइम्स R माइनस आर बीटा इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय R माइनस आर डॉट बीटा का होल क्यूब। ये वेलोसिटी डिपेंडेंट पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और फिर Q इन बाय 4πε0 इंटू R क्रॉस R माइनस आर बीटा क्रॉस बीटा डॉट डिवाइडेड बाय C इंटू R माइनस आर डॉट बीटा होल क्यूब। ये होगा एक्सीलरेशन पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको आप कहते हैं रेडिएशन फील्ड। दैट फील्ड इज ऑल्सो नोन एज रेडिएशन फील्ड। ओके, तो ये रेडिएशन फील्ड है। अब हम लोग इस दोनों पार्ट के फील्ड को आसानी से बता सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, जो आप देख चुके हैं ऑलरेडी। ये आपका वेलोसिटी डिपेंडेंट फील्ड है और ये आपका एक्सीलरेशन डिपेंडेंट फील्ड है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और अगर आपने ईभी और ईए निकाल लिया तो उसी के करस्पॉन्डिंग बीभी और बीए भी आप निकाल सकते हैं। और जैसा कि हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि उसी एक्सीलरेशन फील्ड के कारण क्या होता है, आपका रेडिएशन होता है, पावर एमिशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने फाइनली एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, पावर रेडिएशन होगा कितना उसका कैलकुलेशन करेंगे।